So very good evening to all of you and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that every Sunday we are doing a static GK revision. So let us begin with today's class. I think I'm audible, visible. Is everything fine? Is my voice clear? Yes, I think it's clear. So chalo, yes, good evening. Let's begin with the first question. So the first question says, yes, you're audible, visible. Thank you. Good evening, Hia, Goel, Adrija. Welcome to the class. Siddhi. What is the rank of India among countries of the world area wise? So we'll discuss some static GK. आज थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? And I hope you all should be answering these questions easily. हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सबका आंसर जानते होंगे, लेकिन मैं एक रिवाइजन करा दे रहा हूं ताकि these are taught in school days. I still remember. I mean, class 4-5 में हमको पढ़ाया गया था. This one. So I believe you all should be answering it. Do not put question mark. Be confident and answer me. I believe that this is an easy question. Yes, Vanisha Mantri, you're right actually. So India is 7th when it comes to the rank of the countries area wise. So yes, Vanisha, please tell me which is the largest country of the world. Largest area wise. Yes, Priyanshi, Adrija, CLAT aspirant, you are right. Vanisha, Priyanshi. Yeah. Russia. So I still remember I was taught in my school days Russia, Canada, China, USA, Brazil, Australia, India. ये हमको याद है उसी वक्त का, ठीक है? So yes, the right answer is Russia. Good. And India is the 7th largest country. है ना? Okay. So the largest country है ना in the world is Russia, then Canada, then China, then USA, then Brazil, then Australia, then India. यहाँ पर Australia, we are talking about Australia country and not continent. Both are different. ठीक है? So Australia country as such is larger than India. तो आपको ये ध्यान रखना होगा. देखो ये फर्स्ट वन है. This is Russia. काफी बड़ा सा है. Rank 1 Russia. Second is Canada. Russia, Canada. Then third is China. Then fourth is US. तो US में ये भी आता, अलास्का वाला भी हिस्सा आता है. इधर अलास्का है, which is not visible here. And there are other islands also. So Russia, Canada, China, USA. Brazil is fourth. Then fifth is Australia. नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया. रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए. हाँ, ब्राजील फिफ्थ होगा ना. ऑस्ट्रेलिया इज सिक्स्थ एंड इंडिया इज सेवेंथ. ठीक है? अब देखो, here when I am comparing it, I am talking about this Australia only. तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये कंट्री है. This Australia is a country. Okay. But one Australia is a continent. एक और ऑस्ट्रेलिया है जो कॉन्टिनेंट है, तो उसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ. उसमें आई थिंक पापा न्यू गिनी भी आता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला हिस्सा एंड मेनी अदर आइलैंड्स आल्सो इंक्लूड. ठीक है? सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री प्लस पापा न्यू गिनी प्लस मेनी आइलैंड्स है ना, जैसे कैलिडोनिया, नॉर्थ कैलिडोनिया, सब जितने कुक आइलैंड्स एक्सेट्रा, न्यूजीलैंड, ये सब आ जाते हैं. ये सब मिला के ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहलाता है. ठीक है? सो दिस हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. बहुत छोटी सी चीज है लेकिन अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना. ओशेनिया भी कई जगह लिख रहे हैं आजकल लोग. न्यू ट्रेंड्स में लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशेनिया लिखते हैं, राइट? सो आप देख लेना जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू एक्चुअली मार्क इट अकॉर्डिंगली. ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समटाइम्स, आई हैव सीन, है ना, कि चाइना पहले की यूएस पहले, बट जनरली चाइना ही ज्यादातर बुक्स में जो है वो चाइना ही के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है? कि चाइना इज लार्जर देन यूएस. Okay, I hope this concept is clear. ये clear हुआ? Hopefully, है ना? So India is the 7th largest when it comes to area wise. Let's move on. Yes, good evening, Saransh. Welcome to the class. I hope you are a new student, I think.
What is the length of coastline in India? Now this is not a static GK. Actually, it is a part of current affairs. So we used to teach it in a static GK. So earlier we used to say कि 75,7516 किलोमीटर है ना, 0.6 ऐसे कुछ होता था. अब 11,000 something, 11,098 something. ठीक है. So now you will say कि sir how it has changed. So calculation method has changed. ऐसा नहीं होगा suddenly इतना बढ़ कैसे जाएगा, like how can suddenly the length increase and by huge amount, है ना. तो ऐसा नहीं होता है ना कि थोड़ा बहुत बढ़ता घटता, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा, इससे कि कैलकुलेशन का स्टाइल चेंज किया गया. दैट इज व्हाट यू शुड नो. सो 11,000 किलोमीटर. तो लेट मी शो, है ना, द मैथ्स ऑफ हाउ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथ विदाउट गेनिंग न्यू लैंड. लेंथेंड मतलब इंक्रीजिंग द लेंथ, है ना. लंबाई कोस्ट लाइन की बढ़ गई बिना सच्चाई में कुछ नया लैंड गेन किए. ऐसा नहीं हुआ ना कि इंडिया को कोई और टेरिटरी मिली हो, समथिंग लाइक दैट. सो पहले 7.17516.6 था अर्लियर, एंड नाउ इट इज 11,098.8 किलोमीटर. ठीक है. सो जो ये वाला डेटा है 7516.6, दैट वाज इन 1970s. ओके. और अब देख सकते हो, व्हाई सेइंग 1970s, बिकॉज़ 1961 में गोवा वाज एडेड. बिफोर दैट गोवा वाज अ पार्ट ऑफ पोर्चुगल. तो आप कह सकते थे कि इफ न्यू टेरिटरी गेट्स एडेड देन ऑफ कोर्स थिंग्स लाइक कोस्ट लाइन विल इंक्रीज. बट ये तो 1961 में ऐड हुआ था, उसके बाद का ये डेटा है ना. इवन सिक्किम जो है 1975, तो ये भी तो कोस्ट लैंडलॉक्ड में, कोस्टल एरिया में कहलाएगा नहीं. सो वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि 1970 के बाद कोई वी हैव नॉट गॉट एनी न्यू लैंड. ओके, है ना. Similarly, we had some agreement with Bangladesh when it comes to exchanging some territories. That was called as 100th Constitutional Amendment. But still, even that was done where lands were, it was not the coastlines were not changed, है ना. तो इसका मतलब क्या है? It means actually the calculation method, yes, coastline paradox, someone written, yes, Manisha Mantri, है ना, lies in a problem called as coastline paradox. The previous estimates bank on maps that displayed India's coastline at itna resolution, which is too coarse to capture and indicate features like estuaries, tidal creeks, sandbars, or coastal range. Now it has actually been made more more perfect. अब देखो ये सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कैसे. कॉमन सेंस समझना. जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये न्यूज में था इसलिए मैं बता रहा हूँ. देखो जैसे अगर कैमरा का रेजोल्यूशन, जैसे आप ऐसा सोचो, इफ द कैमरा रेजोल्यूशन इज मोर बेटर, राइट, सो विल इट शो द कोस्ट स्ट्रेट और विल इट शो लाइक दिस? जितना ज्यादा अच्छा कैमरा का रेजोल्यूशन है तो उतना आपको ऊबड़ खाबड़ जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो ज्यादा क्लियर दिखेगा, राइट. अगर कैमरा का रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है तो स्ट्रेट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप फोटो खिंचाए और कैमरा की रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है तो चेहरे पे दाना नहीं पता चलता है, राइट. लेकिन अगर आपका चेहरे पे दाना है और कैमरा बहुत हाई क्वालिटी का, तो क्लियर दाना दिखा देगा. So it is about that only. So earlier technologies were not that perfect. ठीक है. तो उसको सीधा, अब जैसे यहाँ पे मान लो टेढ़ा है, उसको सीधा मान लिया जाता था. कैमरा होता, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी होती पावरफुल नहीं थी, जो भी सैटेलाइट से कैलकुलेशन वगैरह होता था. नाउ इट हैज बिकम मच पावरफुल. तो क्रीक्स मान ले ऐसे करके बाउंड्रीज, फिर यहाँ पे मान लिया एस्चुरी है, टाइडर है, ऐसे, तो ये सब कैलकुलेट हो जा रहा है. एवरीथिंग गेट्स कैलकुलेटेड. ठीक है. बिकॉज बाउंड्री ऐसे स्ट्रेट नहीं होती ना, कोस्ट लाइन इज ऑलवेज लाइक दिस, right. So with the increase in the quality of camera and other things, of course when you recalculate it, of course the length will increase, है ना. तो वही बात है, वो सब बात वही है जो कोस्टलाइन पैराडॉक्स कह रहे हैं, जो भी चीज है ना. मेरी आइलैंड्स पर्टिकुलरली, हाँ, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को तो ठीक से उतना अच्छे से मेजर भी नहीं किया गया, तो रफली मेजर कर लिया गया था. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे आइलैंड्स है, इसका भी तो कोस्ट देखोगे तो उतना अच्छे से नहीं किया, मेजर किया उस जमाने में उतनी अच्छी क्वालिटी. ऑफ कोर्स 1970s में वी हैड नॉट दैट मच एडवांस क्वालिटी ऑफ कैमरास एंड सैटेलाइट्स. ठीक है. अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई. सो ऑफ कोर्स द मेजरमेंट, इफ यू री-मेजर इट, द लेंथ विल बी मच हायर. Yes. So please remember it. This is a part of current affairs also, not only static GK. 11,098.98 है ना, कितना exactly? 0.8. ठीक है. So ये है 11,098.8 kilometer is the new coastline length. Please remember it, because not only it is a part of static GK, but it is a part of current affairs as well. तो हो सकता है इस साल ये सब पूछ दें. ठीक है. ओके, हाँ, तो ये भी बताना चाहिए, गोवा 1961 में ऐड हुआ, सिक्किम 1975 में, एंड 1954 में
ये आया था ना पुडुचेरी फ्रॉम फ्रांस, और गोवा वी हैव टेकन फ्रॉम पोर्चुगल. सिक्किम जो था वो पहले किंगशिप टाइप समथिंग था, सो इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. Okay, let's move on to the next one. Which state in India has the longest coastline? Ja, क्या हो गया? Longest coastline. ये पहले भी वही था, अभी भी वही है, बट लेंथ चेंज हो गया. गुजरात इज द राइट आंसर. ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्यों. सम पर्सन इज सेइंग आंध्र प्रदेश. देखो, आंध्र प्रदेश ये वाला है, ठीक है, दिस इज तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश. तो गुजरात जो ना ऐसे है पूरा घूम के, दिस वन. सो अर्लियर भी लेंथ इज, गुजरात की अर्लियर लेंथ वाज 1600 किलोमीटर, मतलब अर्लियर मेजरमेंट से. अब तो आई थिंक 2000 से ऊपर हो गया है. 2340 किलोमीटर इज द नाउ न्यू लेटेस्ट वन, है ना. सो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज ऑफ गुजरात. प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो अब इसको मानते हैं हम 2340 किलोमीटर. 2340 किलोमीटर इज द न्यू लेंथ, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. सबसे लंबा समुद्री तट. Okay, and this perhaps this is also one of the reason why Gujarat is developed, because whenever you will find coast, you will find more trade. Even in history also we have seen more trade and more development. जहाँ समुद्री तट ज्यादा होता है वहां पर जनरली स्पीकिंग डेवलपमेंट ज्यादा होता है, बिकॉज ट्रेड्स वगैरह आसान होती है. नेक्स्ट है, which of the following countries has the longest coastline of the world? ये भी मैंने देखा है, I saw this in some exam, this question. बताइए. Yes, Ashim, Ashirvad and Barisha Mantri, you both are right. The right answer is option C, Canada. ठीक है, थोड़ा सा क्लोज था लेकिन तो भी मैं बताता हूँ. अब आप गौर से देखो मैं क्यों बता रहा हूँ. जैसे कुछ लोगों ने रशिया बताया, कुछ लोगों ने यूएस बताया. तो जो लोग रशिया बता रहे होंगे वो ऊपर ऐसे देख रहे होंगे, सर इतना इतना आइलैंड है, ये रेड रेड है ना, इसे भी देख सकते हो, ये अच्छा खासा है. ठीक है, चलो ये हो गया रशिया का. यूएस का जो लोग बोलेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे है, फिर अलास्का का भी इतना बड़ा हिस्सा है, फिर वो सारे आइलैंड्स भी है यूएस के, है ना, हवाई आइलैंड एटसेट्रा. बट कनाडा का आप देखोगे, ये वाला पूरा, अब देखो ये कितना सारा है, इतना ज्यादा है ना, छोटा छोटा आइलैंड उलैंड, ये सब कनाडा का हिस्सा. ये ऑल दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कनाडा. तो ये सब समुद्र से टच हो रहा है, ऑल आर टचिंग. जैसे इंडिया में वी आर हैविंग लक्षद्वीप एंड अंडमान, विच इंक्रीजेस द कोस्ट लाइन मच. ठीक है, सो लक्षद्वीप अंडमान की वजह से ही बहुत कोस्ट लाइन बढ़ता है. ठीक है, सो सिमिलरली अब ये वाला हिस्सा की वजह से कनाडा एक्चुअली इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कोस्ट लाइन. Okay, so please remember the answer is Canada having the most longest coastline of the world. ठीक है, that is what you should be knowing. तो बेसिक चीजें मैंने देखा है क्वेश्चंस इस पर. ठीक है, तो क्यों छोड़ोगे ये सब सिंपल क्वेश्चन, यू शुड नॉट मिस इट. अच्छा, एक चीज और पूछता हूं, since we are asking it. ये है अटलांटिक. चलो आपने इसका आगे वाले का आंसर कर दिया, चलो पहले ये डिस्कस कराता हूं फिर आता हूं. मैकमोहन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्री, चाइना एंड इंडिया. कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन सा स्टेट से टच करता है? Which state of India is having border with China? That border is called as McMahon line. Yes, Arunachal. Very good. हाँ, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. मैं रफली बना रहा हूं, दिस इज अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, एंड ये जो है, दिस वन इज मैकमोहन लाइन. ठीक है, नाउ अच्छा एक दो और क्वेश्चन है, उस पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे, बट आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर मैकमोहन लाइन एक 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था. वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज बिटवीन दिस शिमला एग्रीमेंट एंड दैट. तो इसीलिए इसको रहने देते हैं. जस्ट अंडरस्टैंड दैट मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, नाउ आई वाज आस्किंग अबाउट दिस. तो एक दो क्वेश्चन यहां से और बनेगा मेरा, बिकॉज वी हैव सीन क्वेश्चन. तो ये वाला हो गया पैसिफिक, है ना, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक मिला के पैसिफिक, ये वाला अटलांटिक. ओके,
Please tell me there are two locations. Okay, two prominent locations that connect Atlantic with Pacific where the ship can go. And these two were asked in the AILET exam. अटलांटिक को पैसिफिक से कनेक्ट करती है, दोनों रास्ते में शिप जा सकती है. Kushagra, no problem. You can watch the record. Panama Canal is one. What about the other one? एक पनामा है, the other one is. दो पूछा था एलेट में कि these two connect Atlantic and Pacific. वो A और B ऑप्शन दिए थे और C में था both A and B. And the answer was Strait of Magellan. Very good, Ashim. Great. तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ. देखो, एक है पनामा, यहाँ पे छोटा सा कंट्री पनामा. Now Mr. Donald Trump was saying I will capture it, etc. and all. पनामा कैनाल बना दिया गया था 1914 में. Why? देखो, पहले जो उत्तर मान लिया को ये यूके है. फ्रॉम यूके लेट्स से यू वांट टू गो टू यूएस का, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट है, सैन फ्रांसिस्को जाना है. यस के जहां पर आपको भी मिलेगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सिलिकॉन वैली एक्सेट्रा, या उसके नीचे थोड़ा सा लॉस एंजलिस है, फेमस फॉर हॉलीवुड एंड ऑस्कर अवार्ड्स. तो आप यूके से चलोगे, शिप से जाना हो तो आप ऐसे जाओगे, है ना. ये लॉन्गर रूट था. अच्छा, एक चीज और बताता हूं. तो ये जो आइलैंड है इसको कहते हैं फॉकलैंड आइलैंड. और ये भी डिस्प्यूट है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, यूके वर्सेस अर्जेंटीना का डिस्प्यूट है ये. यहाँ पे अर्जेंटीना है और यूके से डिस्प्यूट है इसका. ओके नाउ, तो ये लॉन्गर डिस्टेंस होता था और ये जो रास्ता था ना पतला सा, दिस वाज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन बिकॉज फर्डिनेंड मैगेलन हैड गॉन थ्रू दिस रूट. ठीक है, मैं बताऊं, पहले आप ये जान लो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन. नाउ सो 1914 कहा गया इतना लंबा चौड़ा गया, ऐसे शॉर्टकट मारते हैं. लेट्स हैव अ शॉर्टकट. सो इन 1914 दिस पनामा कैनाल वाज मेड. Okay, so basically Panama Canal and Strait of Magellan both are connecting Atlantic with Pacific. ठीक है. ओके, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अटलांटिक देख रहे हो, ये सदर्न टिप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा कहते हैं ड्रेक्स पैसेज. ये बहुत बड़ा दिख रहा है बट ग्लोब में बहुत छोटा दिखेगा. ड्रेक्स पैसेज, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मूव द शिप. यहाँ पे शिप ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके कई सारे रीजंस है. ठीक है, ड्रेक्स पैसेज इसको कहते हैं. इफ समवन इज इन द शिप, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे आपको. तीसरी चीज ये कि इसको स्ट्रेट ऑफ मैगेलन क्यों कहते हैं. आपने सुना होगा एक आदमी थे, ही स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप, ही वेंट लाइक दिस, यहां से घूम के इधर से आए फिलीपींस में, यहाँ लड़ाई हो गया है. ही एक्चुअली वाज ही डाइड आल्सो बट हिज टीम वेंट केम लाइक दिस, है ना. और ये जो स्टोरी है, ये फर्डिनेंड मैगेलन की स्टोरी है. फर्डिनेंड मैगेलन, इट इज मतलब इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है फॉर सर्कमनेविगेटिंग द अर्थ. Although he died his in the Philippines, circumnavigation of Earth का, है ना. मेन जो क्रेडिट इन्हीं को दिया था कि पूरा चक्कर लगाने का. हालांकि और भी पहले लोग थे बट हाँ, फर्स्ट सर्कमनेविगेशन फर्डिनेंड मैगेलन. तो इसी उन्हीं के नाम पर यहाँ पे मैगेलन स्टेट बनाए गए. ठीक है, मतलब उस रास्ते को मैगेलन स्टेट कहते हैं. दूसरी चीज, यहाँ पे फॉकलैंड एंड यहाँ पे देख रहे हो ना, व्हेन यू सी इन द ग्लोब, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पर दिखेगा. ओके, बिकॉज जैसे आपको ग्रीनलैंड इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं दिखता है. यू सी द ग्लोब, यू विल सी कि ग्रीनलैंड इज वेरी स्मॉल. क्योंकि ग्लोब को जब आप फ्लैटन करोगे तो ऐसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द मैप इज नॉट द रियलिटी. द रियलिटी इज ग्लोब, है ना. तो ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा छोटा होता है, लेकिन मैप में ऐसे फ्लैटन होता है तो ग्रीनलैंड बहुत बड़ा दिखता है. ठीक है, और सिमिलरली फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे दिखेगा और ऐसे जाते. ठीक है, लाइक दिस, और दिस गैप इज लेसर. I hope you got the basic idea about these things, है ना. हाँ, Ferdinand Magellan was the first to go. हाँ, बाद में तो बहुत से लोग हैं, Cook and all different people went. So I hope this basic concept is clear. तो पनामा कैनाल, फर्डिनेंड ये मैगेलन स्ट्रेट, ये सब क्लियर हो गया. Let's move on. आगे चला जाए, है ना. ये मैकमोर लाइन हम लोगों ने डिस्कस कर ली. ये this was in the news yesterday. I'm sure you must be aware. And can you tell me why it was in the news? So it is not even a static GK, now it is a part of current affairs as well. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दुरंत कमीशन बनाया गया था लॉर्ड लिटन के जमाने में, as far as I remember. लॉर्ड लिटन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो उस जमाने में देखो, पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो ऐसे होता था इंडिया समथिंग. तो ये वाला जो बॉर्डर था ना, इसको दुरंत लाइन कहते थे.
1893. Please check it. As far as I remember, this is the date. Durand Commission was set up, है ना? तो होता ये था. Yes, there have been border conflicts. यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया. So people died also. Pakistan, some army men also died. So this is actually Durand line. थोड़ा सा I would say कि after the class is over, read about Durand Commission. And who was the Governor General of India who established this? जहां तक हमको याद आ रहा है 1893 Lord Lytton, but let me check because it is a part of Durand Commission. Durand Commission खुल जा भाई. 1893 अच्छा established Lord Lansdowne was there, not Lord Lytton. ठीक है. ईयर मेरा सही था बट गवर्नर जनरल गलत हो गया. चलो 1893 लॉर्ड लैंसडाउन. लैंसडाउन एक जगह भी है ना, प्लेस टू विजिट आल्सो. आई थिंक इन उत्तराखंड देयर इज अ प्लेस. ओके, लेट्स मूव ऑन. मेडिसिन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज. ये भी हम देखे थे किसी एग्जाम में पूछ लिया था. इसे पूछते हैं ऐसे, सीयूटी वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस. सर आपको क्या लगता है इंडिया ने? नहीं, इंडिया ऑफिशियली क्या असिस्टेंस करेंगे? आई डोंट नो, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट. कुशाग्रा ऑन योर क्वेश्चन. गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? यस महेंद्र, गुड इवनिंग. आई एम फाइन. So medicine line is the border between US and Canada. Many people have answered. Ashim, Hiya, Priyanshi, Siddhi, Adija, Kushagra, Manisha, and aspirant. Yes, US and Canada. तो हम दिखाए थे, काफी लंबी सी लाइन है. तो ये वाली बहुत स्ट्रेट लाइन, बहुत दूर तक स्ट्रेट है. इसको हम लोग कहते हैं 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और शायद आपको पता होगा, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड को पैरेलल भी कहते हैं. पैरेलल्स. सो 49th पैरेलल भी लिखते हैं कई जगह, या इसी को लिखते हैं मेडिसिन लाइन. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए. तो ये हो गया, दैट्स इट. So does this mean Saudi will assist Pakistan because of defense agreement? Yes, yeah, nice question. तो हमको पूरा ओरिजिनल जो अग्रीमेंट है वो पढ़ना होगा कि सऊदी पाकिस्तान में जो डील हुआ है उसमें क्या है एग्जैक्टली, कि whether they have said a border clash includes that or it is only when they have declared official war. ठीक है, मतलब जहां तक. हाँ सर, मुझे फिक्स प्रॉब्लम होती है. महेंद्र देखो, पैसेजेस रीडिंग का जो प्रैक्टिस है वो न्यूज़पेपर या इंग्लिश पढ़ के ही प्रैक्टिस होगा. द मोर यू रीड न्यूज़पेपर्स और द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर इट गेट्स इंप्रूव्ड. ठीक है, उसका एक ही सोल्यूशन है. जो सऊदी पाक वाला आप बता रहे हो ना, कि अगर चूंकि यहाँ पे किसके विश हुआ है सऊदी शुड कम एंड हेल्प एटसेट्रा लाइक दैट, तो उसमें देखना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक द इंटायर डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन. बट आइडिया यही था कि इफ पाकिस्तान इज अटैक्ड, आइडियली सऊदी इज सपोज्ड टू हेल्प. सो उस हिसाब से तो यस, दे शुड सपोर्ट. बट व्हाट एग्जैक्टली वाज द एग्रीमेंट वी नीड टू रीड, वो विच इज आई थिंक नॉट इन द पब्लिक डोमेन, द इंटायर डिटेल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है कि जब तक वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जाए तब तक हेल्प नहीं करेगा, या इवन इफ स्मॉल अटैक ऑन द बॉर्डर दे विल हेल्प. व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्ड, है ना, उस पर डिपेंड करता है. तो वो आई थिंक पब्लिक डोमेन में डिटेल नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है. मतलब वो सिर्फ रफ आइडिया ये दिया गया कि वी आर डूइंग नाटो टाइप अग्रीमेंट. ठीक है, सो दिस इज 49 पैरेलल, है ना. ये 49 पैरेलल आप देख सकते हो कनाडा और यूएस के बीच में. ठीक है, अच्छा आप ध्यान रखिएगा यूएस कनाडा का ये भी बॉर्डर है, अलास्का वाला भी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, है ना. सो हैव टू बी वेरी केयरफुल. छोटी छोटी चीजें बट काफी इंपॉर्टेंट होती है. द नेक्स्ट इज रैटक्लिफ लाइन. ये तो काफी फेमस है एंड आई होप यू ऑल शुड बी आंसरिंग. हाँ, कोई बता सकता है थोड़ा सा इसकी स्टोरी, एक दो लाइन में? प्लीज द राइट आंसर. यस, हाउ द नेम केम, हाउ लाइक रैटक्लिफ लाइन नाम कैसे पड़ा एटसेट्रा एंड ऑल.
हाँ, एक्चुअली रैटक्लिफ कमीशन बनाया गया था व्हेन वी वर गेटिंग इंडिपेंडेंस. जस्ट बिफोर दैट रैटक्लिफ केम एंड ही जस्ट ड्रॉ दिस लाइक दिस. Okay, so at that time it was a West Pakistan, this was East Pakistan. Later on it became Bangladesh, so it became Pakistan. शायद आपको पता होगी ये सब कहानी, है ना? हाँ, सेम लाइक दुरान कमीशन, राइट? ओके, लाइक दिस, है ना? तो ये और ये जो है रैटक्लिफ लाइन कहलाता है. So now, if actually even if it is written India and Bangladesh, Ratcliffe line is between India and Bangladesh. That is also true because ये वाला बेस और ये वाला, है ना? And it was not properly mapped. हाँ, very good. Now, actually, there's a very interesting story. Can anyone tell me? यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक एरिया था जो डिस्प्यूट हो गया था. There were some issues regarding it, and there was some confusion because of Ratcliffe line boundary, etc. And the matter even went to the Supreme Court. To India was supposed to give some portion, or there was one thana actually, if I'm not wrong, that was supposed to be given later on to Bangladesh because of that agreement, etc. And it became a very famous Supreme Court judgment. उस judgment का नाम क्या है? I'm waiting for that. बहुत famous prominent judgment है. You will read in your life. It is related with that. जो दार्जिलिंग का एरिया ना, न्यू जलपाईगुड़ी, वहीं पे एक थाना था. चिकन स्नैक कॉरिडोर इज फाइन, बट देयर वाज अ नेम ऑफ द जजमेंट. बेरूबारी केस. वेरी गुड, फैंटास्टिक आशिम. बेरूबारी यूनियन केस को समथिंग करके नाम, बेरूबारी केस 1960 लिखते. सो देयर वाज वन थाना और समथिंग लाइक दैट. मतलब वो छोटे, बहुत बड़ा एरिया नहीं था. सो दैट वाज सपोज्ड टू बी गिवन टू बांग्लादेश. तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, कोई बता सकता है? So Supreme Court said that yes, you have to do a Article 368 use करके constitutional amendment you have to do to give that territory to the Bangladesh. ठीक है. Similarly, when Modi ji came to power in 2015, land boundary agreement was done. जब हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे, land boundary agreement was done where some territories were exchanged between India and Bangladesh. So उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द लाइन ऑफ दिस जजमेंट. ठीक है. सो बेरूबारी केस में ये बताया गया था ना कि आपको अगर कुछ एक्सचेंज भी करना है टेरिटरी वगैरह, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. इसीलिए 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया था. ठीक है. उसमें क्या इश्यूज थे थोड़ा सा बताया था. जैसे ही बाउंड्री है, इधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया है, तो बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी यहाँ पर है और इंडिया की कुछ टेरिटरी यहाँ पर है, ऐसा समथिंग. तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना, इट्स क्वाइट प्रॉब्लमेटिक. ऐसे कैसे है ना? सो दैट वाज सॉल्व्ड एक्चुअली. समथिंग मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो टू सॉल्व दिस 100 अमेंडमेंट वाज डन. आपने सुना होगा 99th अमेंडमेंट इज एनजैक, है ना? 101st अमेंडमेंट इज जीएसटी. तो ये बीच वाला 100 क्या है? वही था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है. That is what you should be knowing. Is it clear? समझ में आया? Because you will appreciate when actually आगे में जब आप पढ़ोगे, so you will realize it that how important it was. ठीक है. वैसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, of course. खैर, let's move on further. Whatever you are learning, है ना, during the preparation phase, even if it will not come in the examination, maybe हो सकता है सब चीज पढ़ के सब तो एग्जाम में आता नहीं है सारा कुछ, but still it will be helpful in your college days and in future life. So do not think कि इतना काहे पढ़ रहे हैं ना, जिंदगी में काम आएगा काफी. कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल है ना, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, है ना. सो म्यांमार एंड इंडिया के बीच है. दिस इज द राइट आंसर. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर पेड सेशन आल्सो. ये सब बताया हूं मैंने. तो ऐसा कुछ है जैसे लेट्स से फ्रॉम कोलकाता यू हैव टू सेंड सम फूड ग्रेन टू मिजोरम. ऐसे जगह घूम फिर के, इट्स क्वाइट लॉन्ग, है ना, रफ टेरेन सी पहाड़ी एरिया है. सो द अदर शॉर्टकट इज कोलकाता से यहाँ पे सेतवे पोर्ट है म्यांमार में, शिप से चला गया. लार्ज शिप, बिग शिप से, जो यहाँ पे बिग शिप चलेगी, समुंदर है. फिर यहाँ पे रिवर है, कालादान रिवर, तो रिवर में छोटी छोटी शिप चलेगी, तो स्मॉल फेरी. फिर यहाँ से फिर ट्रेन या बस से चला जाएगी. ठीक है. दैट इज व्हाट इट इज. ये बिग शिप्स, ये कालादान रिवर, स्मॉल शिप्स, स्मॉल फेरी.
और फिर यहाँ पे हाईवेज हो गए अपने चले जाइए सामान, जनरली फूड वगैरह भेजा जाता है, फूड ग्रेन एक्सेट्रा, जैसे कोलकाता से मान लो जाना है ना, समथिंग लाइक दैट। और मतलब दैट इज आइडिया बिहाइंड दिस। तो ये प्रपोज्ड प्लान है ना, कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। इट रिमेन्स इन द न्यूज मेनी टाइम्स, कई बार अक्सर न्यूज में अखबार में आते होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सितवे पोर्ट है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी यू विल फाइंड मालदीव्स। ये तो आसान है। आई थिंक मोदी जी रिसेंटली विजिटेड ऑल्सो इन देयर इंडिपेंडेंस डे, 60th इंडिपेंडेंस है ना, यस 26 जुलाई 1965 को इनका इंडिपेंडेंस है ना, रिसेंटली 60 years दे सेलिब्रेटेड ना, ये ना, लेट मी चेक इट, मालदीव्स इंडिपेंडेंस, हाँ 26 जुलाई 1965, आई वाज राइट। सो मोदी जी वाज इनवाइटेड ऑन द 68th इंडिपेंडेंस डे। तो कहां मिलेगा ये? इंडियन ओशन में, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है, कैन इनवेंट टेल मी व्हाई मालदीव्स इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया आल्सो। तो आपको पता होगा लास्ट ईयर वी हैड सम इश्यूज विद मालदीव्स बिकॉज सम ऑफ द मिनिस्टर एडवर्सली कमेंटेड है ना ऑन मोदी जी एक्सेट्रा, उसके बाद थोड़ा फ्रिक्शन वगैरह हो गया, बट स्टिल वी ट्राई टू सॉल्व इट एंड नाउ वी हैव ओवरकम दैट। यस, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इफ मालदीव्स गोज क्लोजर टू चाइना इट इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक टू अस। तो हम नहीं चाहते हैं, ऑफ कोर्स इंडिया विल नेवर वांट कि मालदीव्स शुड बी अवे फ्रॉम अस बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब मान लो मालदीव्स ने चाइना के साथ अग्रीमेंट कर लिया, चाइना ने बोला ठीक है हम अपना शिप यहाँ पे लगा देंगे, नेवल शिप, लेट्स से दे डू द अग्रीमेंट, इट इज अ बैड न्यूज फॉर अस if this will happen. That is why even if last year we had some issues, but still we try to solve it, and of course it has to be solved. It is not ideal that we should have bad relation with Maldives or Sri Lanka because from strategic point of view, ठीक है, तो negotiate करके रहना है ना। जैसे एक बड़ा फेमस कोट है, you can choose your friend but not neighbor. आई थिंक वाजपेयी जी ने कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एज फार एज आई कुड रिमेंबर। पड़ोसी तो आप चुन नहीं सकते हो ना, वो तो ज्योग्राफिकली मेड है ना, तो आपको, एंड फ्रेंड ऑफ कोर्स यू कैन चूज, so that is what, so here it is Maldives and strategically it is very important for us. Why is India important for Maldives? वो भी समझ, all the tourist goes, so उनका पूरा बिजनेस ही टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, so for them also India is very very important, okay है ना, so both are like this है ना, तो ये लूज नहीं करना इंडिया को है ना, we have to ensure that Maldives should not go away from us, otherwise it will be quite problematic. Yes, string of pearls किसी ने लिखा है, yes Kia Goel, you're right, string of pearls is actually the what the China is doing. Yes, जैसे हम्बन तोता पोर्ट जो है यहाँ पर है ना, which is actually going near to like almost being controlled by China now है ना, so that is what you should know. So of course if these things are happening, of course it is not very good for us कि Chinese ship will come in these areas, especially the naval ship. Good evening sir. Yes, good evening Sarthak, welcome to the class. What is the capital city of Maldives? Hopefully you all should be answering it. बाकी का भी आंसर बता दीजिए, A and D also. Please tell me their capital of which country. माले है ये, ठीक है, capital city of Maldives. And बाकी बताइए, मनीला is the capital of which country? ये सब आना चाहिए आपको. D बर्मा, हाँ बर्मा या म्यांमार कह लेते हैं. And A is Philippines. चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. फिलीपींस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, बट एज फार एज आई कुड रिमेंबर दिस इज द फिलीपींस. Karachi is not a capital, yes, but I want to ask one question. Can you please tell me the name of the river on Karachi? Because this question was like I would say indirectly asked in MH set exam. MH set या CLAT, इस दोनों में से किसी एक में पूछा था. In either of the two they asked this question. On which river you will find Karachi? And why I'm discussing even today. This year also it was important because Indus Water Treaty was cancelled, etc. देखो मैंने आपको कई बार बताया हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ. देखो क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाज आस्क्ड. as far as I remember MH set में पूछा था कि there's a river which starts from Tibet, comes to India and Ladakh, goes to Pakistan and falls in Arabian Sea on Karachi.
So this they are talking about is Indus. ठीक है. और the Indus water treaty happened. Please tell me in which year it happened. 3 चीज बताओ, ईयर बताओ, है ना. Who were the 2 leaders and who was the mediator, मतलब बीच. So it happened in Karachi. तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था वो कराची ही में हुआ था. उसका कारण यही था, इंडस. हाँ, वेरी गुड. 1960. 2 leaders. Very good. Name the 2 leaders and who was the mediator. Brokered by World Bank, Nehru and Ayub Khan. Very good. Priyanshi, Kushagra, Ashim, CLAT. Very good. So Jawaharlal Nehru was there, है ना, plus Ayub Khan from Pakistan. और mediator और middle जो भी कह लो, World Bank. Why I'm discussing repeating it because Indus Water Treaty was in the news this year. We have suspended it, है ना. तो of course ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, कराची वगैरह ये भी पूछ सकते हैं कौन से. So that is what you should know. And अच्छा चलो देखते हैं. Let me see how many of you can answer. ये कौन सा स्टेट है? This is which state of Pakistan, which I am highlighting with red. A lot of prominent Indians belong to this region. Sindh, हाँ आपने सुना होगा सिंधी, है ना. So yes, this is Sindh actually. हाँ, good, very good. हाँ, तो बहुत सारे इंडियंस जो है ना, वो मतलब उनके पूर्वज जो है वो सिंध से आते हैं. आपने सुना होगा सिंधी कल्चर, सिंधी मैरिज, है ना, like this. So we are stopping this class here. ठीक है. अच्छा एक दो और. हाँ, आडवाणी जी. यस, आडवाणी जी वाज देयर फ्रॉम सिंध. जहां मैंने जितना मैंने सुना है लास्ट में जो आई करके होता है ना, आडवाणी जी, अंबानी जी, एन आई करके लास्ट में, जनरली वो सिंधी लोग का टाइटल में होता है. आई हैव हर्ड दिस, मे बी आई मे नॉट बी राइट, बट नोबेल प्राइज क्लास विल हैपन. यस, मंडे को. लेट मी क्लियर बताता हूँ, एक सेकंड. सो मंडे 3 PM. ठीक है. सो 3 और नोबेल प्राइज बचे हैं ना. सो विल डिस्कस मंडे, है ना, को जो बचा हुआ, और एक ट्यूसडे को इकोनॉमिक साइंसेस का विल डिस्कस दैट. ठीक है. केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस का विल डिस्कस ऑन मंडे. ट्यूसडे को देयर इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, एंड उससे फिर वेडनेसडे को हम लोग पूरा सेव का रिवीजन करा देंगे. इकोनॉमिक्स विल बी अनाउंस इन मंडे 3-4 PM के अराउंड अनाउंस होगा. ठीक है. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.